Hello all, myself Deepak and welcome to my YouTube channel. So जो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है हमारे पास. गेट 2026 का नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है आज की डेट में. सो आई होप मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मैंने पहले भी आपको अपडेट कर दिया था कि फ्रॉम 28 the examinations registration opens. Initially the date was 25, but IIT Guwahati changed the dates from 25 to 28. So अब हमें basically गेट का फॉर्म फिलअप कर देना है. जितना जल्दी फिलअप कर देंगे आप उतना बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए. So there are certain poster. So first we can go on this poster as well. If so मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ इस पोस्टर को. ओके वेल. सो आप देख पा रहे होंगे सर इस बार जो गेट 2026 है वो कराया जा रहा है आईआईटी गुवाहाटी के थ्रू. सो आईआईटी गुवाहाटी विल कंडक्ट दिस गेट एग्जामिनेशन. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सबसे पहले हम देखते हैं. आपको वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है. दोज हु आर एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे कैन ओनली सी दिस वीडियो. सो यू फाउंड दैट फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड द हायर ईयर्स, यानी सर अगर आप थर्ड ईयर में हैं अभी करंटली या फोर्थ ईयर में हो या इससे ऊपर, you pass out the exam the fourth year, then we can say that you will eligible to fill the GATE 2026 examination. How many programs are eligible there? Tech, engineering, tech, science, architecture, commerce, all these are eligible. All the students from the engineering background, technological background, science background, BSc, MSc students, architecture background and the commerce students are eligible to appear in the examination of the GATE 2026. Moving forward, अगर हम और आगे देखें, कुछ आर्ट्स के भी हैं. these in this recent years गेट ने जो IITs हैं उन्होंने आजकल गेट हिस्ट्री में और बाकी अदर अलाइंड सब्जेक्ट्स पे भी निकाल दिया है. तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी गेट दे सकते हैं. Supported by the institution, supported by the MOE and the other government agencies can also apply in the examinations. Moving further, so these are the subject codes. How many branches are eligible in the GATE? That is aerospace engineering, agriculture, architecture, biomedical, biotech, civil engineering, chemical engineering, computer science and tech. So हमारे काम का computer science और tech है यहाँ पे mainly. तो हम देखेंगे सर computer science और tech वाला बच्चा देगा. डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम की चीज, ये दो ब्रांचेस हैं. ईसी वाले भी दे सकते हैं. इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एंड जियोमेट्रिक जियोमेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन गिव द एग्जामिनेशन. जियोलॉजी एंड द जियोफिजिक्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. गेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दैट. इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग, even mathematics students can also this is also for over subscribers and the users. You found the mechanical engineering, mining, metallurgical, naval architecture, petroleum physics, production, statistics and the textile. XE is the engineering science. Few basic are added here, that is humanities and social science. इसकी हम बात कर रहे थे अभी कुछ recent years में. arts भी add हो गया है, that is humanities and social science में भी आप गेट लिख सकते हैं, and the life sciences. Okay, so ये कुछ examinations हैं. आप आराम से जो all those who have these degree or in the third year of these degree and in the fourth or pass out through these particular subjects, they can eligible to sit into the examination. अच्छा, गेट में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हुआ तो ही आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाला एग्जामिनेशन देंगे. आपके पास अगर बीटेक इन एआई है तो आप कंप्यूटर साइंस वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं. ऐसे ही वाइस वर्सा और भी बहुत सारे ब्रांचेस में इंटरचेंजेस पॉसिबल है. February 7, 8, 14, 15 एंड 26 एग्जाम्स डेट है. तो आज से आप कैलकुलेट कर लीजिए. फरवरी तक आपको आपकी प्रिपरेशन बाइंड अप कर लेनी है पूरी. देन मार्च में रिजल्ट आ जाएगा. Examination fees. Okay, so I hope SC, ST, PWD and the female candidates have the regular fees of 1000 rupees and exempted extended period में आपको देना पड़ेगा 1500 रुपए. That is for the late fees. Other students from the general categories, they can submit approximately 2000 rupees for the GATE application. Then extended period, again the late fee, with the late fee they can provide for 2500 rupees. So you can eligible for the 2 paper at a time. Since these are the basic, I think most important things you must required to know before filling the examination. All the examination is computer based examination. Conducting by ISC and IITs, you already know about this. All these basic things I think covered we have. So these are the multiple logos of the IITs who will conducting the GATE examination, take part in the GATE as well as provide the admission through the gates. Okay,
अब हम चलते हैं हमारे बैक पे दोबारा से, where we have this brochure. Okay, so come on this brochure. अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ दिखती है तो हम वो भी कवर आउट कर लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है। 2026 वाला जो पेपर है वो IIT गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत मेजर पार्ट है आपका। सो इंपॉर्टेंट डेट्स, सो कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम देखेंगे सर। 28 अगस्त से आपके पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। देन सितंबर इज द क्लोजिंग डेट। मस्ट रिमाइंड, आप इंजीनियर से मुझे पता है लास्ट दिन नहीं भरने वाले हैं, लेकिन इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप थोड़ा सा पहले फिलअप कर लीजिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज ही फिलअप कर लीजिए, मेरा तो मानना है। अगर आप जितना डिले करोगे उतना लास्ट मिनट रश से बचने के लिए जितना जल्दी फिल करो उतना बढ़िया। पर आई नो आप लोग इंजीनियर्स एंड सारा काम लास्ट में करने की आदत है, तो मे बी एट दी लास्ट डेट ही आप फिल करेंगे, बट ध्यान रखना 28 सितंबर से पहले पहले आप भर दें। Closing of date is the 9 October for with the late fee. You can also fill it till 9 October with the late fee. That is 500 rupees is the late fee for filling the this particular form. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। आप देखेंगे कुछ हमने ये चीज डिस्कस कर ही ली है। So there are the 2000 rupees for the general candidate. For SC, ST, PWD and the female candidates, you will get the 1000 rupees. This is by when adding the late fee. Okay, till 9 October. तो यहाँ पे 9 अक्टूबर तक भरने वालों के लिए ये फीस है। उससे पहले जो है विद इन द डेट भरने वालों के लिए ये फीस रहने वाली है गेट की। सो इसमें कुछ और काम का हमें दिख रहा है नहीं, कुछ ऐसा मेजर चीज मुझे नहीं लगता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइलाइट्स फॉर गेट 2026 नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। एग्जाम डेट्स आपको ध्यान रखनी है, फरवरी तक आपको आपकी प्रिपरेशन सारी वाइंड अप करनी है, जैसे हमने अभी डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। इंपॉर्टेंट डेट्स वी हैव डिस्कस्ड। सो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। So general aptitude comes for the 15 marks, then engineering mathematics comes for the 13 marks. Subjective questions or your subject related question will be of 72 marks, so total it becomes the 100 marks. So आपके पास total 100 marks का पेपर आएगा। Number of questions आपको ध्यान रखना है 10 from the general aptitude and 55 from the subject, so it approximately comes out to be 65 questions. Okay. मार्किंग स्कीम आपको ध्यान रखनी है हमेशा। इवन आप जो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सारे मॉक्स अभी तक लगा रहे होंगे। सो मॉक्स में भी आपके पास इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा एमसीक्यू में, कुछ जो एमसीक्यू है, और 1/3 डिडक्ट किया जाएगा। लाइकवाइज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 2/3 डिडक्ट कर दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द एमएसक्यू एज वेल एज द नेट क्वेश्चंस यू हैव टू कीप इन द माइंड। सो एमएसक्यू और नेट में आप तुक्के लगा सकते हो, ऑल्दो लगा नहीं पाते हो वहाँ पे। बहुत एक्यूरेट चीज़ें, इतना तुक्का इतना एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से मेजरली जो था वो इनिशियल के कुछ पेजेस में हमने कवर आउट कर लिया है। अच्छा, यूज ऑफ स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ आपके साथ, इसको आप थोड़ा सा समझें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर गेट का पेपर और गेट का स्कोर कार्ड कहाँ हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, हम दें या ना दें। तो उन सब बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, PSUs हैं, दे इन दैट ऑल द पब्लिक सेक्टर PSUs you found gate score is valid for their recruitment process, and there are multiple organizations just like Airport Authority of India will consider the gate score, HAL consider the gate score, Coal India Limited consider the gate score, and the multiple PSUs you will found here who can consider the gate scores. That's it, I think is more important. I think other things are not that much important. आपने बीटेक कहाँ से करी हुई है, ये सारे कितने साल का प्रोग्राम है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, ये आपके पास कोई काम की चीज़ नहीं। You all are about these things. Okay. I don't think इससे ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। फिलिंग ऑफ द गेट फॉर्म मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि आप जेई का पेपर देके आए हैं सारे बच्चे, बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करते हैं, तो वो एक जनरल पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो करते हुए उसमें गेट में क्या क्या आपको मेजर है वो साइंस आप अपडेट कर देंगे फोटोज के अकॉर्डिंग। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया। किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो गो टू द नियर बाय साइबर कैफे, वहाँ पे जाके भी फिल करा सकते हो आप फॉर्म। ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, अगर आपसे खुद से नहीं भरा जा रहा है। वैसे तो टेक्निकल आदमी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आता नहीं है इन सब चीज़ों में। ओके, दैट्स इट। आई थिंक इसके अलावा कुछ मेजर चीज़ें मुझे लग नहीं रही है इम्पॉर्टेंट। ओके,
पूरे नोटिफिकेशन में जो हमने था वो मेजरली डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे पास पूरा गेट का इंट्रोडक्शन था कि सर गेट 2026 का फॉर्म आ चुका है, आपको सबको फिल कर देना, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है टाइमली फिल करके रखें। और लेट्स सी कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियोस वॉच करें। I hope this is useful information for all of you. Thank you so much. Have a nice day. Take care, students, and stay connected. Okay, sir.